इसका भी यार सीआर में से कोई प्रेजेंट है? यस सर। बेटा इस चीज का ध्यान रखें, ये जो बीच बीच में डिस्टर्ब करने वाले स्टूडेंट्स को नोट डाउन करें आप, ठीक है? एंड लेट इन्फॉर्म मी आफ्टर द क्लास. So then again repeating, denting plan, warp ends during weaving are spaced out across the width of the warp sheet according to the desired warp density by the wires of the reed. So that is the basic function of reed. One of the functions of reed, it is determining total ends per inch in the fabric, or the warp density in the fabric, which is one of the important parameter of fabrics. And that is done with the help of a particular denting order and particular reed count. In support of that, we have taken some numericals also, how we calculate EPI if reed count and denting order is given. And sometimes if EPI and reed denting order is given, how we can calculate reed count. But that what type of calculation we should know. The most frequent order of density, not density, the most frequent order of this denting is 1, 2, 3, or 4 ends per dent. Generally, we prefer regular denting orders. If regular means throughout the width of the reed, we are passing same number of ends through one dent. But there are some types of fabrics, however, which require an irregular order of denting to emphasize certain design feature. कुछ particular design features को अगर emphasize करना है, highlight करना है, in that case, sometimes we are going for irregular denting order. It means it will not remain same throughout the width of the reed. That we will understand with the help of example. And in such cases, the order of arrangement of the ends in the reed becomes an essential part of the design. अगर regular denting order है, तो अगर आप denting plan को sure नहीं कर रहे हैं, तब भी there will be no issue. In case of regular denting orders, we just write the number की क्या denting order है, along with the reed count. Reed count के just आगे oblique करके हम वहाँ पे एक नंबर लिख देते हैं. जैसे अगर 2 denting order है, 2 ends per dent है, तो जो भी reed count है oblique 2 लिख देंगे. अगर 3 denting order है, तो जो भी reed count है oblique 3. Like for example, reed count is 48 and denting order is 3. We will write 48 oblique 3. 48 means reed count, 3 means denting order. In that case, there is no need to represent the denting plan on the graph paper. But if it is irregular arrangement, it is irregular denting order, then it becomes essential to indicate the denting plan on the graph paper along with the design and draft. And it must be indicated carefully and in the correct relationship in respect of the weave and draft. और इसकी एक particular location होगी, एक particular relationship होगी, weave और draft के साथ में, वहीं पर हम इसको carefully indicate करेंगे. So how we indicate, what are the methods of indication of denting plan are used, that we are going to understand. So here I have taken one very simple example of plane weave. So here you can see a weave is shown here in 4x4. This number is N number 1, N number 2, N number 3, N number 4. This is pick number 1, pick number 2, pick number 3, and pick number 4. And this is the size of the design, 4 ends and 4 picks. So we write the size just below the design in this way in a bracket. Here we write at the right side number of picks starting from bottom 1, 2, 3, 4. Here we start from left side and we indicate the ends 1, 2, 3, 4 like this. So whenever you are planning a graph paper, before starting the designing work, first do this basic work. It will facilitate you easy working and minimum chances of mistakes. So make it practice. कि यहाँ पे हमें ड्राफ्ट और डिजाइन के बीच में या डिजाइन और डेंटिंग प्लान के बीच में हमें एंड्स के नंबर लिखने हैं, ड्राफ्ट डिजाइन और लिफ्टिंग प्लान के बीच में हमें पिक्स के नंबर लिखने हैं और नीचे डिजाइन का साइज लिखना है. So if I am taking a simple view, that is plain view, however it is repeating only in 2x2, but I have taken, just to facilitate and just to make the example more clear, I have taken 4x4. Otherwise, the minimum size required for plane view is only 2x2. You can see it is 2x2. This is same as this one. This is same as this one. This is same as this one. So in this, I have taken 4 repeats in 4x4 for plane view. But generally, because 2x2 is a very small size and it doesn't allow us
better representation of draft, lifting plan and denting plan, particularly denting plan, so that we are generally going for larger sizes in smaller designs. जिन डिजाइन की साइज बहुत छोटा है उसमें हम कभी कभी उसका 2 रिपीट या 3 रिपीट भी हम इंडिकेट करते हैं. Our required is only 1, but to facilitate and for better representation of all other elements, we are going for larger sizes. यहाँ पे हमने 4x4 लिया है. Our required is 2x2. Now see, I have taken 3 methods here. इन तीनों ग्राफ पेपर मेथड है, because in this we are using graph paper. तो तीनों ग्राफ पेपर मेथड है, बट ग्राफ पेपर में जो रिप्रेजेंटेशन है या मार्क्स हैं हम डिफरेंट यूज करते हैं, यूज कर सकते हैं. इसलिए यहाँ पे 3 मेथड्स मैंने बेसिकली लिए हैं. दिस इज इंडिकेटिंग फर्स्ट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेंटिंग प्लान इफ द व्यू इज दिस. इसमें मैंने ड्राफ्ट लिफ्टिंग प्लान शो नहीं किया है, जस्ट आई वांट टू एम्फेसाइज ऑन डेंटिंग प्लान, इसलिए मैंने ड्राफ्ट लिफ्टिंग प्लान छोड़ दिया है. आप चाहें तो आप जब इसको नोट डाउन करें ग्राफ में तब आप इसका ड्राफ्ट और लिफ्टिंग प्लान भी बना सकते हैं जस्ट बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ ड्राफ्टिंग. But here the purpose is to indicate the denting, so I have just indicating the denting plan by using various methods. So here what does in case of denting plan, what will be the size of denting plan? That is first thing. The size will depend on number of ends in the repeat, ends per repeat. Ends per repeat जितना डिजाइन में होगा या जितना ड्राफ्ट में होगा उतना ही एंड्स डेंटिंग प्लान में भी होगा. तो यहाँ डिजाइन में 4 एंड्स हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 वर्टिकल स्पेस लिए हैं. This is indicating end number 1, end number 2, end number 3, end number 4 in denting plan. And these 2 rows, यहाँ पे minimum 2 rows लेते हैं, even maximum भी 2 ही लेते हैं generally, और minimum भी 2. But कुछ books में या कुछ examples में इससे थोड़ा different भी दिया, वो भी मैं आपको later on clear करूँगा. But generally और 99% time we are using 2 lines only, always 2 lines, not more than 2 or not less than 2. Why we are using 2 lines? Can anybody guess? Okay. Here 2 consecutive marks in 1 line you are observing. And here also 2 consecutive marks you are observing. जितने consecutive marks हैं एक line के अंदर, that is indicating ends per dent. इस example में ends per dent क्या है? 2. अगर 3 होता तो हम क्या करते? 1, 2 और 3 में भी मार्क लगाते. जो डेंटिंग ऑर्डर हैं उतने कॉन्जिक्यूटिव मार्क्स एक लाइन में आएंगे. फिर हम दूसरी लाइन क्यों यूज कर रहे हैं? चेंज ऑफ डेंट शो करने के लिए. अदरवाइज हम चेंज ऑफ डेंट कैसे शो करेंगे? जैसे फर्स्ट डेंट में 2 है और हम केवल ये 2 का साइज ही ले और 2 ही शो करें तो हमें क्लियर नहीं होगा. इसलिए हम इसमें 4 का साइज ले रहे हैं. तो एक बार दोनों लाइन यूटिलाइज हो जाए तो फर्स्ट लाइन में 2 मार्क्स का मतलब कंसेक्यूटिव मार्क्स का मतलब 2 एंड्स पर डेंट है, और ये जो चेंज करके सेकंड लाइन में आ रहे हैं इसका मतलब फर्स्ट डेंट से हम सेकंड डेंट में जा रहे हैं, यानी कि नेक्स्ट एंड्स जो आ रहे हैं उनको सेकंड डेंट से पास करना है. और अगेन सेकंड डेंट में अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव मार्क्स हैं इसका मतलब क्या हुआ? उसमें भी 2 पास करना है. एंड दिस इज 1 रिपीट. तो अगेन 5th और 6th एंड एक डेंट से पास होंगे, 3rd डेंट से. 7th और 8th जो होंगे वो 4th डेंट से. फिर 9th और 10th एंड है जो नेक्स्ट डेंट से. ऐसे डेंट्स वाइज हम 2 एंड्स को पास करते जाएंगे. तो इनको शो करने के लिए जितने कॉन्जिक्यूटिव मार्क्स हम एक लाइन में लेते हैं, those marks will be the number of marks will be according to ends per dent. Is it clear? और जैसी लाइन चेंज हुआ इसका मतलब डेंट चेंज हो गया. जैसी लाइन चेंज हुआ इसका मतलब डेंट हमने चेंज कर दिया. और आप वापस देखेंगे नेक्स्ट रिपीट में ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी कि हम सेकंड लाइन से फर्स्ट लाइन में आ जाएंगे. Whenever we have to change the dent, we are moving from first line to second line और second line to first line. जब भी लाइन चेंज किया इसका मतलब आप समझ लें कि वो नेक्स्ट डेंट आ रहा है. लाइन 2 लाइन यूज करने का पर्पस ही ये है कि हम चेंज ऑफ डेंट शो कर रहे हैं. देन सेकंड मेथड में यहाँ हमने क्रॉस यूज. यस, ये जो सेकंड ओरिजेंटल लाइन है तो जो इसमें क्रॉस लास्ट 2 बॉक्स में लगे तो वो फर्स्ट 2 बॉक्स में भी लगा सकते थे क्या? डेंट में, सेकंड डेंट में यहाँ पे. हाँ सर. हाँ, आप ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हैं. सेकंड लाइन से कर रहे हैं तो फिर अगली बार ये फर्स्ट में आ जाएंगे. यू कैन यूज एनी लाइन, बट जनरली क्या होता है हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, तो हमने इसको फर्स्ट से स्टार्ट किया हुआ.
Yes, टू sir. सिंप्लीफाई, राइट। और अगर मार्क्स यूज नहीं करते आप लाइंस भी यूज कर सकते हैं। तो जिन जिन स्क्वायर्स में लाइंस आ रही, जितनी लंबी लाइन है, यानी कि 2 स्क्वायर में आ रही है, इसका मतलब 2 एंड्स पर डेंट है। और फिर अगर आपने लाइन चेंज किया, आपने डेंट चेंज कर दिया है और नेक्स्ट डेंट में चले गए हैं, और उसमें भी आप कंटिन्यूस ये लाइन 2 स्क्वायर में जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 एंड्स पास कर रहे हैं। तो हियर 2 एंड्स, हियर 2 एंड्स, और पूरे रिपीट में 2 एंड्स ही है, इसका मतलब आगे भी 2 ही रहने वाला है। इट मीन्स रेगुलर डेंटिंग। और थर्ड मेथड और यूज किया है, ऐसे ब्रैकेट्स बना दिए। जो ब्रैकेट जितने स्क्वायर को कवर कर रहा है उतना हम बड़ा ब्रैकेट बनाए। अगर 3 का ऑर्डर है तो हम इसको यहां तक लेके आएंगे, 3rd तक। 4 का है तो हम इसको 4 तक लेके आएंगे। तो ये जो ब्रैकेट बन रहा है, इस तरह का जो अपोजिट वी बना रहे हैं, वो इस तरह से बनेगा। इसको आप सीधा भी कर सकते हैं, इसको वी शेप में भी आप दिखा सकते हैं, उल्टा भी दिखा सकते हैं। पर्पज इज कि कितने एंड एक डेंट से पास हो रहे हैं, कितने एंड्स का ग्रुप बन रहा है, दैट वी हैव टू शो। वी यूज दिस मेथड और दिस मेथड और दिस मेथड, एनी मेथड वी कैन यूज। एंड वन मोर मेथड यू कैन फाइंड इन द बुक्स कि 2 लाइन यूज नहीं किया हुआ, केवल एक ही लाइन यूज किया हुआ, लाइक दिस। इसमें अगर एक ही लाइन यूज करें तो उसमें क्या करते हैं, 2 कंटिन्यूस मार्क कर देते हैं और 2 कंटिन्यूस ब्लैंक कर देते हैं। So 2 marks are showing, 2 consecutive marks means they are passing through same dent. 2 consecutive blanks means they are passing through same dent if we are using only 1 line. But generally we go for 2 lines. So I have taken only 2 lines. And in examination or in further classes also we will use 2 lines, always 2 lines for denting plan. तो denting plan की horizontal line हमेशा fix रहेगी 2, और 2 भी इसलिए यूज कर रहे हैं चेंज ऑफ डेंट शो करने के लिए। फर्स्ट से सेकंड लाइन गए, इसका मतलब डेंट, अगला डेंट आ गया है, इसलिए हम सेकंड लाइन में जा रहे हैं। सेकंड से फर्स्ट में आए तो इसका मतलब अगला डेंट आ गया है। तो जैसे चेंज ऑफ डेंट होगा हम लाइन से मूव कर जाएंगे, और एक लाइन में जितने मार्क्स लग रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव, उनको काउंट कर लें, दैट विल बी डेंटिंग ऑर्डर। अगर यहाँ पे 4 मार्क्स लगा देते हैं, 1 2 3 4, इसका मतलब डेंटिंग ऑर्डर इज 4। बट क्योंकि वो एक पूरा रिपीट कंप्लीट नहीं हो रहा, एक बार इस लाइन में भी आना चाहिए, इस लाइन में भी आना चाहिए। अगर यहाँ 4 का डेंटिंग ऑर्डर इंडिकेट करना है तो आपको इसका साइज डबल करना पड़ेगा। 4 एंड्स में नहीं बनेगा, ये 8 एंड्स में बनेगा। तो डिजाइन को भी फिर आपको 8 में ले जाना पड़ेगा, सेम रिपीट इन 8 एंड्स। अगर यहाँ पर डेंटिंग ऑर्डर 4 है तो। अगर यहाँ पर डेंटिंग ऑर्डर 3 है तो क्या करेंगे, एक क्रॉस और लग जाएगा, एक क्रॉस यहाँ लग जाएगा, तो फिर यहाँ एक ही क्रॉस बचेगा। और भी एक और लगेगा ना सर? 1 2 3, यहाँ 3 लग गए। फिर आपने 3 के बाद क्योंकि चेंज करना, डेंटिंग ऑर्डर अगर 3 है इस केस में, तो 1 2 3 लग गए। तो फिर आगे एक ही मार्क बचा आपके पास, आगे आपके पास एक ही मार्क बचा, एक ही स्क्वायर बच रहा है। इसका मतलब इसका डिजाइन कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो डिजाइन कंप्लीट करने के लिए यू आर फ्री टू मल्टीपल द रिपीट्स। जरूरी नहीं आप 4 एंड्स ही लें। अगर डिजाइन कंप्लीट नहीं, अगर डेंटिंग प्लान कंप्लीट नहीं हो रहा है 4 की साइज में इस पर्टिकुलर केस में, तो आप इसको डबल कर सकते हैं, 4 की जगह आप 8 भी कर सकते हैं। लेकिन अगर डेंटिंग ऑर्डर 4 है तब तो 8 में कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ कंटिन्यूस 4 मार्क्स आ जाएंगे, अगले में भी कंटिन्यूस 4 मार्क्स आ जाएंगे, तो 8 में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर डेंटिंग ऑर्डर इसी केस में अगर 3 है तो यहाँ 1 2 3 आ गए, फिर नेक्स्ट में 4 5 6 में यहाँ ऊपर आ गया, लेकिन अगेन फिर यहाँ पे 2 बच जाएंगे, और 2 अगर शो कर रहे हैं इसका मतलब 2 एंड्स पर डेंट है, जो कि गलत हो गया, क्योंकि आपको 3 शो करना है, रेगुलर डेंटिंग है। तो उसके लिए आपको उसी के अकॉर्डिंग साइज लेना पड़ेगा। तो यहाँ डिजाइन का साइज अगर 4 है और डेंटिंग अगर 2 है तो 4 में कंप्लीट हो जाएगा। और अगर डेंटिंग 4 का है और डिजाइन का साइज भी 4 है तो उसको डबल करना पड़ेगा, तब वो कंप्लीट रिपीट आएगी। और अगर डेंटिंग ऑर्डर 3 है, डिजाइन साइज एंड्स 4 ही है, तो उसका आपको एलसीएम करना पड़ेगा, तब आपका एक बराबर रिपीट्स आएगी। तो यानी कि 4 और 3 का एलसीएम दैट इज 12। तो आपको इसी डिजाइन को पिक वाइज तो 4 रखें, लेकिन एंड वाइज इसको 12 तक लेके जाएं। फिर जब ये 12 तक कंप्लीट हो जाएगा, इसको भी फिर 12/2 में इंडिकेट करें, तो 4 हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट 4 हो जाएंगे, फिर वापस 4 हो जाएंगे, सॉरी 3, यहाँ 3 हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट 3, अगेन 3 एंड अगेन 3, 3 3 3 3, टोटल 12, 3 + 3 + 3 + 3। तो उसके लिए रिक्वायर्ड साइज 12 होगा।
सो डिपेंड करेगा कि डेंटिंग ऑर्डर क्या है और एंड्स पर रिपीट डिजाइन में क्या है। एंड्स पर रिपीट एंड एंड्स पर डेंट दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको डेंटिंग प्लान का साइज डिसाइड करना पड़ेगा। तो जब भी हम एग्जांपल्स लेंगे आगे, जब डिजाइन पढ़ेंगे तब हम डेंटिंग प्लान को और भी लेंगे तो और ये क्लियर होगा। एंड स्टिल अगर यहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन, स्टिल वी हैव 8 minutes मोर। अगर ये अभी किसी को समझ में नहीं आया तो आप में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो मैंने आपको यस ये जो थर्ड वाला डेंटिंग प्लान है वी वाला, तो सर इसमें तो सारे कोई भी ब्लैंक बचा नहीं है। हाँ, इसमें हम ब्लैंक नहीं छोड़ते हैं। इसमें ये केवल ये शो कर रहा है कि 3 है और ये भी, ये सॉरी 2 एंड्स पर डेंट है, ये भी 2 एंड्स पर डेंट है। ये मेथड ही अलग है। ये यूज करें तो बस आपको केवल वी लगाते जाना है। सीधा वी भी लगा सकते हैं, उल्टा वी भी लगा सकते हैं, बट जनरली वी यूज दिस मेथड, सो डोंट वरी अबाउट दिस मेथड्स। ये आप बुक में अलग अलग मेथड्स दिए हुए हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बट जनरली वी आर यूजिंग दिस मेथड, ग्राफ पेपर मेथड, जिसमें हम क्रॉस और क्रॉस यूज करते हैं। ठीक है? यस सर। ओके, वी आर टेकिंग फ्यू मोर एग्जांपल्स, टाइम परमिट, जितना टाइम मिलेगा उतने एग्जांपल्स लेंगे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे कुछ नई चीजें हैं, इसको हम बाद में लेते हैं क्योंकि ये हम वैसे भी डिजाइन पढ़ने वाले हैं, उसके साथ भी लेंगे। फर्स्ट आई एम टेकिंग दिस केस। तो यहाँ आप देख रहे हैं इस तरह का व्यू है। यहाँ पे ये जो डिजाइन है इसमें आप देखेंगे बेसिकली टू टाइप ऑफ इंटरलेसिंग ऑर्डर्स आते हैं। हियर 1 अप 1 डाउन, 1 अप 1 डाउन, और ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड्स तक 1 अप 1 डाउन चल रहा है। लेकिन अगर आप आगे देखेंगे, यहाँ 1 डाउन 3 अप है, यहाँ 1 अप 1 डाउन 2 अप है, यहाँ 3 अप 1 डाउन है, यहाँ 2 अप 1 डाउन 1 अप है, यानी कि 3 अप 1 डाउन चल रहा है। कमेंसिंग अलग अलग है, बट यहाँ पे भी आप देखेंगे 3 अप 1 डाउन, यहाँ 2 + 1 3 अप 1 डाउन, 3 अप 1 डाउन, यहाँ भी 2 और ऊपर से 1 ऐड करें रिपीट, नेक्स्ट रिपीट में तो 3 अप 1 डाउन। बेसिकली इट इज 3 अप 1 डाउन डिजाइन। जो डार्क से दिखाया हुआ है, दिस इज 3 अप 1 डाउन डिजाइन एंड दिस इज 1 अप 1 डाउन डिजाइन। दोनों साइड्स में जो है 1 अप 1 डाउन। पर्पज इज आप इन दोनों का वो देखें, हाउ मच फ्रीक्वेंट इंटरलेसिंग इज देयर। जो मैंने आपको ड्राफ्ट एक्सप्लेन किया था तब मैंने सेकंड पॉइंट लिया, कैरीज द थ्रेड्स विच आर मोस्ट स्ट्रेन। ओके, स्ट्रेन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फ्रीक्वेंट इंटरलेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि किसमें ज्यादा फ्रीक्वेंट इंटरलेसिंग्स हैं। तो आप यहाँ देखें 4 पिक का डिजाइन है, 1 इंटरलेसिंग इज हियर, फिर ये यहाँ अप है, यहाँ डाउन है, यहाँ पे यहाँ डाउन है। इसमें 4 इंटरसेक्शंस आ रहे हैं। और यहाँ कितने इंटरसेक्शंस आ रहे हैं? 2 इंटरसेक्शंस। इंटरसेक्शन मींस अप से डाउन कितनी बार हो रहा है या डाउन से अप कितनी बार हो रहा है। यहाँ आप देखें, यहाँ अप है फिर डाउन हुआ 1 हो गया, फिर डाउन से अप हुआ 2 हो गया, फिर अप से डाउन हुआ 3 हो गया, और ये डाउन है, नेक्स्ट में वापस अप हो रहा है, नेक्स्ट रिपीट में ये मार्क ऊपर ऐड होगा तो वापस यहाँ भी हम काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर देयर इन 4 पिक्स। तो यहाँ आप देखें 3 अप 1 डाउन, सिंप्लिसिटी के लिए इसको ले लें 3 अप 1 डाउन, यानी कि यहाँ पर कंटिन्यूसली अप है, फ्लोट बन रहा है, और फिर ये नीचे जा रहा है, फिर ये नीचे से वापस यहाँ ऊपर आएगा। यानी कि क्रॉस से ब्लैंक हो रहा है या ब्लैंक से क्रॉस हो रहा है, इसका मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट क्रिएट हो रहा है। जो थ्रेड है वो फेस से बैक में जा रहा है या बैक से फेस में आ रहा है। एंड जब भी फेस से बैक में जा रहा है या बैक से फेस में आ रहा थ्रेड, तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्रिएट करेगा वहां पर। तो यहाँ 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स है और यहाँ पे 4 इंटरसेक्शन पॉइंट है विद इन द सेम डिजाइन। डिजाइन के पिक्स 4 हैं, बट कुछ पार्ट जो डिजाइन का है उसमें 4 इंटरसेक्शन पॉइंट्स 4 हैं और कुछ में 2 है। यस, अब इन दोनों के इंटरसेक्शंस में अगर डिफरेंस है, बेसिकली जो सेट थ्योरी है जहाँ ईपीआई और पीपीआई हम कैलकुलेट करते हैं, उसमें हम यही देखते हैं कि डिजाइन में कितना फ्रीक्वेंट इंटरलेसिंग्स हैं। जिस डिजाइन में ज्यादा फ्रीक्वेंट इंटरलेसिंग होगा वहां पर थ्रेड्स ज्यादा स्पेस लेंगे एज कंपेयर टू जो एम्प्टी स्पेस होगा फैब्रिक में, जो खाली स्पेस होगा उससे, यानी कि उसकी कॉम्पैक्टनेस ज्यादा होगी। सेम कॉम्पैक्टनेस इन डिजाइन में लाने के लिए हम यहाँ पर हमें एंड्स की डेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी।
यानी कि अगर डिजाइन में एक ही डिजाइन में दो तरह के इंटरसेक्शंस अगर मिक्स हैं, दो तरह की इंटरलैसिंग्स मिक्स हैं, तो हमें वार्प डेंसिटी भी दोनों में अलग अलग करनी पड़ेगी। दोनों में अलग कैसे कर सकते हैं? रीड हमारी सेम है, रीड काउंट हमारा सेम है। अगर रीड काउंट थ्रू आउट द विड्थ वही रहेगा, अगर 36 रीड काउंट है तो 36 डेंट्स पर 2 इंच विल बी देयर। तो रीड काउंट तो सेम है पूरे थ्रू आउट द विड्थ ऑफ रीड, थ्रू आउट द विड्थ ऑफ फैब्रिक। तो हम ईपीआई कैसे चेंज कर सकते हैं डिफरेंट पोर्शंस में? अगर एक पोर्शन में हमें ईपीआई कम रखना और एक पोर्शन में ज्यादा रखना, तो वो कैसे कर सकते हैं? क्या चेंज कर सकते हैं हम? हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारे कंट्रोल में है एंड्स पर डेंट। एक डेंट से कितने एंड्स पास करें, दैट इज इन आवर कंट्रोल। तो व्हाट वी आर डूइंग जी, अगर ज्यादा फ्रीक्वेंट डिजाइन है जहां वहां हम डेंटिंग ऑर्डर कम कर देते हैं। यानी सपोज यहाँ पे मैं डेंटिंग ऑर्डर 2 कर देता हूँ, तो यहाँ पर डेंसिटी क्या होगी? सपोज 36 का रीड है, इस एरिया में डेंसिटी क्या होगी? 36 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। और यहाँ पर अगर मैं डेंटिंग ऑर्डर 4 कर देता हूँ पर्टिकुलर इस सेक्शन में, तो 36 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4, यहाँ पे 72 होगी ईपीआई। तो इस पोर्शन में अगर आप ईपीआई देखेंगे तो 36 होंगे, इस पोर्शन में 72 होंगे। एंड दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेगुलर डेंटिंग ऑर्डर। आप देखें यहाँ पे हमने फर्स्ट लाइन से स्टार्ट नहीं करके सेकंड से किया। 2 consecutive marks means 2 ends per dent. 2 consecutive marks, 2 ends per dent. 2 consecutive, 2 ends. And here you can see 1, 2, 3, 4 consecutive marks. तो ये जो ends हैं ये 4 1 dent से पास हो रहे हैं। नेक्स्ट देखें 1, 2, 3, 4, तो 4 ends per dent. फिर यहाँ पे देखेंगे 4 ends per dent. फिर अगेन 2 ends per dent, 2 ends per dent, 2 ends per dent, 2 ends per dent. डेंटिंग में एक बहुत माइन्यूट चीज आप ध्यान में रखें हमेशा, अगर आपने यहाँ सेकंड लाइन से स्टार्ट किया है तो ये फर्स्ट लाइन पे एंड होना चाहिए, क्योंकि अगर ये भी सेकंड पे एंड हुआ तो नेक्स्ट रिपीट में ये इससे जुड़ जाएगा और ये 2 के बजाय 2 + 2 4 हो जाएगा, जो कि गलत कर देगा डेंटिंग। क्योंकि यहाँ में 2 चाहिए तो वो 2 ही रहना चाहिए। तो 2 का मीन्स अगर ये फर्स्ट लाइन में एंड हो रहा है तो ये सेकंड लाइन में एंड होना चाहिए, सेकंड लाइन में स्टार्ट हो रहा है तो ये फर्स्ट लाइन में एंड होना चाहिए। सो एक एग्जाम्पल मैंने इरेगुलर डेंटिंग ऑर्डर का लिया है। जब भी और कभी हमें टाइम अलाउ होगा तो हम इसकी कैलकुलेशन भी लेंगे कि ईपीआई कैसे कैलकुलेट करते हैं ऐसे केसेस के अंदर। और एक एग्जांपल यहाँ पे शो किया है, दीज 3 एंड्स आर पासिंग थ्रू सेम डेंट। तो हमने 3 का ब्रैकेट बनाया, फिर 3 सेम से पास हो रहे हैं 3 का ब्रैकेट, फिर 3 सेम से 3 का ब्रैकेट और 3 सेम से पास हो रहे हैं, यानी कि डेंटिंग ऑर्डर 3 है। लेकिन यहाँ पे आप देखें जहां भी डेंट 3 खत्म हो रहा है वहां पे हमने उल्टा करके ई लिखा हुआ, यानी कि यहाँ पे हम एक डेंट खाली छोड़ रहे हैं, ई फॉर एम्प्टी डेंट। दैट टाइप ऑफ ऑर्डर इज ऑल्सो टेकन फॉर पर्टिकुलर डिजाइन्स। वो हम जब डिजाइन लेंगे तब आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट दीज आर डिफरेंट मैथड्स और डिफरेंट केसेस which we can consider or we can understand with related with denting plan. So thank you so much. If any question, we have few seconds.